आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होते हैं, किस किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स it is the process of taking in food and its utilization for various life process प्लांट में ये न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? प्लांट्स परफॉर्म द न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, यानी कोई चीज़ जो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, यानी मेकिंग और फॉर्मेशन of something in the presence of light is called photosynthesis. तो plants, as we know that कि plants make their food by the process of photosynthesis. During this process they use carbon dioxide and water and they form food and oxygen, which is utilized by human being and other animals. This carbon dioxide is plants get from the plants stomata. This carbon dioxide plants take through their stomata क्या होता है? ये प्लांट के लीफ में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये एक प्लांट की लीफ है। इसको अगर हम क्रॉस सेक्शनली कट करें तो इसमें हमें कुछ सेल्स की लेयर्स दिखती हैं इस तरीके से। देयर आर सम सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स। इन लीव्स के बीच में एक ओपनिंग होती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा। बाय दिस ओपनिंग प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. This water they form food. The chemical formula of this food is C6H12O6. It is a type of carbohydrate. So finally we can say that plants make their food by the process of photosynthesis, and this process happens or perform during the presence of light. So we can show here light, sunlight, not artificial light, and in presence of chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a pigment. It is
It is a pigment which helps to trap the sunlight. This chlorophyll is present in the chloroplast of the leaf. By doing the formation of food, after the formation of food, न्यूट्रिशन कितने तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वी कैन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वी कैन ऑल्सो से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. There are mainly two types of nutrition. The first one is autotrophic mode of nutrition, and the second one is heterotrophic mode of nutrition. First of all, we will see here autotrophic mode of nutrition. Auto, as the name suggests, autotrophic nutrition already I will discuss. Auto means self. Tropic, तो auto as the name suggests self, यानी this type of nutrition in which the formation or the process of nutrition takes place by itself, और यानी कि वो सभी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस बाय सेल्फ कंप्लीट होती है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और इस तरह की न्यूट्रिशन प्रोसेस हमें ग्रीन प्लांट्स and algae and some bacteria में देखने को मिलती है. ग्रीन प्लांट्स के फूड फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है. एल्गे और बैक्टीरिया किस तरीके से अपने फूड के लिए या न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए डिपेंड करते हैं, इसको हम सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन: the mode of nutrition in which plants make their own food and utilize it is called autotrophic nutrition. Clear? Autotrophic nutrition.
The mode of nutrition in which plants make their own food and utilize it is called autotrophic nutrition. इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि इस तरह के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं. Another one is heterotropic mode of nutrition. Hetero means different. This type of nutrition takes place in plants and non-green plants and animals. We can define heterotropic mode of nutrition. It is the mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which non-green plants and animals obtain their food from different sources. The main source for this type of nutrition or taking animals or non-green plants is green plants, which provide a lot of food to this type of animals or non-green plants. Next हम देखेंगे what are the types of heterotropic nutrition. Heterotropic न्यूट्रिशन कितने टाइप से हो सकता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप से हो सकता है. एक हो सकता है आपका सैप्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. दूसरा पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. एंड थर्ड वन इज symbiotic type of nutrition. Saprotropic nutrition takes place in those type of organisms which depend on dead and decaying matters to get their food. तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend on dead and decaying matter. इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मशरूम मशरूम कैसे ग्रो करता है? मशरूम किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी लकड़ी को हम काफ़ी समय के लिए खुले में रख देते हैं और उस पर अगर बारिश का पानी पड़ता है तो उस पर छोटे छोटे वाइट
कुछ दिखने लगता है। ये मशरूम और ईस्ट जो निकलते हैं, ईस्ट, इनको फूड कहाँ से मिलता है? ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। इनको ये फूड कहाँ से मिलता है? दे गेट देयर फूड बाय दिस डिकेइंग ऑफ द वुड। इस वुड के डिके होने से ये जो ईस्ट जो होते हैं ये अपने आप को ग्रो करते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें मशरूम, ईस्ट और माउल्ड्स जैसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, पैरासाइट्स आर दोज स्पीसीज विच डिपेंड ऑन अनदर species to get their food and they grow. In this type of nutrition, organism depend on other living organism. For example, अमरबेल का प्लांट होता है। अमरबेल प्लांट ये क्या करता है? दूसरे प्लांट पर कवर कर लेता है। ये एक अलग प्लांट है, अगर इस पे अमरबेल का प्लांट जाएगा तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है और इस प्लांट से, इस ट्री से ये न्यूट्रिशन, अपना फूड लेता है और फिर अपने आप सरवाइव करता है अपने आप को। तो जिस प्लांट पे ये कवर करता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। इसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं, होस्ट प्लांट। पैरासिटिक मोड ऑफ, इसको अमरबेल प्लांट कहते हैं, अमरबेल प्लांट इसको बोला जाता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मोस्टली टेक्स प्लेस इन अमरबेल प्लांट एंड इस तरह के प्लांट जो होते हैं ये दूसरे प्लांट और ट्री के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो प्लांट फूड बनाते हैं उनके ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं। इस तरीके से होस्ट प्लांट को स्वयं के लिए कोई फूड बचता नहीं है और धीरे धीरे उनकी लीव्स का कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होने लगता है और उनके फूड के न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो प्लांट सूखने लगते हैं। अनदर न्यूट्रिशन mode of nutrition is symbiotic nutrition। ये किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सिम मीन्स होता है टुगेदर और बायोटिक मीन्स लाइफ। यानी इस तरह के न्यूट्रिशन में ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं टू गेट देयर न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दो ऑर्गेनिज्म इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं to survive or live together for their mutual benefit। इसका एग्जाम्पल हमें लाइकेन एक देखने को मिलता है। लाइकेन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, एक होता है लाइकेन के प्लांट में, एक हमें ऑर्गेनिज्म इसके साथ एल्गी देखने को मिलता है और एक फंगी देखने को मिलता है। एल्गी और फंगी लाइकेन से अटैच होते हैं। ये फंगी जो होते हैं, दिस फंगी होल्ड्स द एल्गी सेल्स इन इट्स मैट वेब लाइक स्ट्रक्चर
ये फंगी का जो स्ट्रक्चर होता है इसका मैट वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हाइफे कहते हैं। हाइफे कहते हैं। ये इससे अटैच हो जाता है एंड सप्लाई देम विद वाटर एंड मिनरल्स, और ये वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है। एल्गी इसके लिए क्या करता है? एल्गी प्रिपेयर द फूड एंड सप्लाई इट टू द फंगी। लाइकेन प्लांट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एल्गी और फंगी अटैच होते हैं। इसमें फंगी से एल्गी जो होता है अटैच होता है, एक फिंगर लाइक मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हाइफे बोलते हैं। इसमें अटैच होता है HYPHAE हाइफे अटैच होता है, और ये इससे न्यूट्रिशन गेट करता है। और एल्गी का काम होता है न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करना, मीन्स फूड का फॉर्मेशन करना, क्योंकि एल्गी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट्स दैट कैन नॉट बी सीन, और इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में भी रखते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। ओके, थैंक यू।